So today is our introductory class for class 9th, science chapter 1, matter in our surrounding. So in previous classes you have studied about various types of matters and their state. Now in this class today we will discussing in details what is actually matter called, matter is made up of what, and what are the physical states of matter and what are their property, how they will be interchangeable. So let's start with the today's class with the matter in our surrounding, introductory class for class 9 session 2021-22. So let's start with the definition of matter. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि matter anything मटीरियल इन यूनिवर्स अराउंड अस, हमारे अराउंड जो भी मटीरियल है जिसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं, तो वी कैन क्लासीफाई इट एज मैटर. दैट मीन्स मेड अप ऑफ डिफरेंट एंड डेफिनेटिव डिफरेंट शेप. एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कुछ भी जगह घेर रहा है, ऑक्यूपाइज स्पेस, कंसिडर्ड एज अ मैटर. उसमें एज अ मास, दैट मीन्स उसमें किसी ना किसी तरह का मास होना चाहिए उसका. एंड लास्ट, रेजिस्टेंट टू अप्लाइड फोर्सेस, किसी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस के अगेंस्ट वो किसी तरह का रेजिस्टेंस शो करता है, तो दैट कैन बी कैटेगराइज्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर. सो सिंपली हियर वी आर सेइंग दैट एनीथिंग अराउंड अस इन यूनिवर्स which has different shape, occupies some kind of space, has a mass and resists to external applied forces is called as a matter. So in following section we will discuss the matter is made up of what and what are the properties of those things. So here we are discussing matter made up of particles. So simply any matter that is made up of particle have some kind of properties. That means particles are very small. First we see that the matter is made up of particles and these particles are very small inside. That means you can't see with normal vision, but you if you consider, sometimes you can see with the ultra microscope in certain condition. Secondly, particles are continuously moving. So here we take an example. That means let look like this. Particles are made up of matter is made up of particles. Particles are very small in size. Second property यहाँ पर हम देख सकते हैं, particles are continuously moving. That means particles are moving here and there in random direction. So in matter, particles are always moving here and there certain direction. And third property of particles are have space between them. That means in any matter they composed of particle and particle have some kind of space between them. Some has larger spaces and some has very least spaces between them. Some matter have particle space very large and some have very little space in between them, but they have some certain kind of space in that can be large or that can be very small space between the particles. Fourth property of particles of matter are they attract each other. So particles of matter attract each other with certain forces. Although these forces are very negligible, but also these forces allow particles of matter to hold itself. That means these forces present between the particles so that they can hold their physical state. So here are the following properties of the particles. Particles, they are very small. Particles are continuously moving, have space between them and attract each other. So these are the following properties of the particle from which the matter is made of. That means made up of particles. Now in further section we will discuss physical state of matter. First important three, then there are two more states we will discuss in the further section. Now let's discuss our states of matter
have to mention physical states of matter. Chemically they are different, but physically here are the three main states of matter. First one is solid, second one is liquid state, and third one is the gaseous state. So one by one we discuss the properties of the particle in each and every state. So let's discuss about this. First, space between the particles. We have discussed in the properties of particle that particles have space between them, but individual state में अलग अलग हो सकता है. तो यहाँ पर हम देखें सॉलिड स्टेट में हम देख सकते हैं that means particles have very least space between them. अगर हम कंपेयर करें तीनों स्टेट्स का तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस है वो सबसे कम कहाँ आपको मिलेगा, लीस्ट कहाँ मिलेगा, सॉलिड में. इंटरमीडिएट स्पेस कहाँ मिलेगा आपको, लिक्विड में. और सबसे मैक्सिमम स्पेस आपको कहाँ पर मिलेगा पार्टिकल्स के बीच, गैस स्टेट में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल लीस्ट कहाँ हो जा रहा है, सॉलिड स्टेट में. इंटरमीडिएट स्पेस आपको मिलेगा लिक्विड स्टेट में, और सबसे मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल आपको किस स्टेट में मिलेगा, गैसियस स्टेट में. नाउ सेकंड टॉपिक विल बी द काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस द एनर्जी बाय विच द पार्टिकल मूव. हमने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल में कि पार्टिकल आर ऑलवेज मूविंग, यानी कि पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं. सो जो एनर्जी जिससे वो मूव कर पा रहे हैं वो एनर्जी यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी. तो चूंकि हम देख सकते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम है तो सबसे कम मूव करते हैं. तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे मिनिमम होगी. लिक्विड में अपन देख सकते हैं कि स्पेस थोड़ा बिटवीन पार्टिकल्स ज़्यादा है तो यहाँ पर उनमें काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू द सॉलिड थोड़ी ज़्यादा होगी. और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल में कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, गैसियस स्टेट में. क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेस इनके बीच में है तो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए ज़्यादा जगह मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी, पार्टिकल में, गैस स्टेट में. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हमने कहा था कि पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं. तो जो अट्रैक्शन का फोर्स है यहाँ पर अपन देख सकते हैं सॉलिड में पार्टिकल पास पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बहुत ज़्यादा है. सो सॉलिड यहाँ पर उनको होल्ड करके रख सकते हैं पार्टिकल्स में. देन लिक्विड की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपेयर में यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है. दैट मीन्स लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल वो कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट. नाउ इन गैस में आप देख सकते हैं पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे लीस्ट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, गैसियस स्टेट में. चौथी प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. जैसा कि अपन ने कहा स्पेस बिटवीन द पार्टिकल सॉलिड स्टेट में सबसे कम है. दैट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होगा, बहुत ही लीस्ट, या पर अपन कह सकते हैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा. फिर लिक्विड की बात करें, देख सकते हैं आप पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है. दैट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल का मूवमेंट सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होगा. और सबसे ज़्यादा स्पेस बिटवीन द पार्टिकल अपन ने कहा कि गैस स्टेट में है. दैट मीन्स यहाँ पर जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो सबसे मैक्सिमम होगा. तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करें तो मैक्सिमम इन गैसेस, इंटरमीडिएट इन लिक्विड स्टेट, एंड सबसे लीस्ट जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सॉलिड स्टेट. नाउ फर्दर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं. वन बाय वन we have to discuss, followed by some examples in everyday life and also in the scientific life. Now here we discuss about properties of each state of matter starting from the solid. So properties of the solid state, देख सकते हैं कि जो solid state है मैटर की उसमें अपन क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकली. सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि each and every solid has डेफिनेट शेप. आपके आसपास आप सराउंडिंग में देखेंगे जो भी डेफिनेट शेप की आपको चीज़ थिंग दिखेगी डेफिनेटली वो किस कैटेगरी में आ सकती है, सॉलिड स्टेट में. साथ में और अदर प्रॉपर्टीज भी होना जरूरी है, लेकिन फर्स्ट वन डेफिनेट शेप. नाउ सेकंड वन डिस्टिंक्ट बाउंड्री. कि एनी सॉलिड में आपको देख सकते हैं कि किसी सॉलिड में सपोज कोई क्यूब है तो वहाँ पर अपन देख सकते हैं
पहला प्रॉपर्टी इसने फुलफिल कर दी कि डेफिनेट शेप है, दैट मींस समथिंग लाइक ये क्यूब शेप का है। फिर सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉलिड का एक स्टार्टिंग एंड एक एंड है, यानी कि वो कहाँ से कमेंस हो रहा है और कहाँ पर फिनिश हो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कहेंगे डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। नाउ रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या हो सकता है सॉलिड के लिए प्रॉपर्टीज में कि जो हमने कहा था कि पार्टिकल्स जिनसे मिलकर के मैटर बना हुआ है सॉलिड में बहुत ज़्यादा कंप्रेस पास होते हैं, यानी कि सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई जो सॉलिड हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, रिजिड। दैट मीन्स सिंपल, आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे दे आर लाइक हार्ड, मोस्ट ऑफ द सॉलिड आर हार्ड एंड हैव rigidity, that means they can hold their particular state like shape and size. फिर incompressibility, that means you can't compress a solid to a certain limit. We have discussed that particles of solid state have very least space between them, they are barely moving, they have least kinetic energy, that's why they are incompressible, यानी आप उसको ज़्यादा compress नहीं कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टीज की बात करें सॉलिड स्टेट की, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम, कोई भी एक सॉलिड मैटर होगा तो उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं उसके डायमेंशन के थ्रू। हम कंपेयर करके देखेंगे आगे प्रॉपर्टीज को, जैसे कि लिक्विड की अपन बात करें तो लिक्विड का कुछ एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं होता, आप जिस भी कंटेनर या पार्ट में उसको आप फिल कर देंगे वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अपन सॉलिड की बात करें, सॉलिड में आपको कैसा मिलेगा, हमेशा एक डेफिनेट वॉल्यूम देखने को मिलेगा। नाउ एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से एग्जांपल आप सॉलिड स्टेट में कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन देखें जैसे कि ये रबर बैंड, तो रबर बैंड को भी आप एक सॉलिड में क्लासीफाई, सॉलिड स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन चेंज देयर स्टेट अंडर फोर्स एंड रिगेन देयर शेप। ऑल्दो वो अपना शेप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को हटाएंगे वो शेप को फिर से वापस मेंटेन कर देता है। फिर सॉलिड है फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस, देयरफॉर सॉलिड्स आर फिक्स्ड एंड रिजिड। तो वो अपन पहले डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं कि सॉलिड जो है रिजिड और फिक्स्ड शेप के होते हैं। फिर ऐसे ही अपन बात करें क्रिस्टल्स की, जैसे कि लाइक सॉल्ट है या शुगर है, ऑल्दो दे कैन डिजोल्व इन वाटर, बट जो उनके क्रिस्टल के शेप और साइज है वो डेफिनेट होते हैं और उनमें क्या हो जाती है सम काइंड ऑफ रिजिडिटी और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो ऐसे ही अपन बहुत से सॉलिड स्टेट के जो एग्जांपल है उनको आगे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेट ऑफ मैटर जो कि है लिक्विड, इसके अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे कॉमनली लिक्विड है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी मीन्स सिंपली अपन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि लिक्विड कैन फ्लो, यानी कि जो एक फ्लो वर्ड आ जाता है फ्लूडिटी, तो फ्लूडिटी जो अपन वर्ड यूज करते हैं वो यहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन अपन बात करें फ्लूडिटी जो है सबसे ज़्यादा गैस में हो जाती है, उससे कम थोड़ा सा लिक्विड में और सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं। तो लिक्विड्स हैव फ्लूडिटी बिकॉज लिक्विड एंड गैस दोनों में फ्लूडिटी होते हैं, जिनको अपन समटाइम कंसीडर है फ्लूइड्स, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी लिक्विड्स हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। हमने सॉलिड में देखा था कि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में थी, बट यहाँ लिक्विड में अपन कंपेयर करें तो कैसी है लो कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि बिकॉज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल लिक्विड स्टेज में सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें इसमें सम अमाउंट में क्या मौजूद हो सकती है कंप्रेसिबिलिटी। हम अगर कंप्रेस करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल थोड़ा सा कम होगा, दैट्स व्हाई लिक्विड कैन कंप्रेस बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज ग्रेटर देन सॉलिड स्टेट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी लिक्विड है नो डेफिनेट शेप, जैसा कि अपन ने पहले सॉलिड के लिए कहा था दे हैव डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री, पर यहाँ पर अपन लिक्विड में क्या करेंगे नो डेफिनेटिव शेप और बाउंड्री। हमने कहा था दे टेक शेप ऑफ वेसल्स दे आर स्टोर्ड इन, जो भी वेसल या अपन कंटेनर में लिक्विड को स्टोर करते हैं उसका शेप या ले लेता है और उसी की बाउंड्री को फॉलो करता है, लेकिन इनका कोई डेफिनेट शेप या बाउंड्री नहीं होता। लास्ट प्रॉपर्टी अपन बात करें लिक्विड्स की तो है डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ पर अपन एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि लिक्विड आर सब्सटेंस हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनका कोई डेफिनेट शेप
या बाउंड्री नहीं होता, जिस भी वेसल या कंटेनर में आप उनको स्टोर करेंगे उसका शेप ले लेगा, लेकिन डेफिनेटली दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इट वॉल्यूम सेम. जैसा कि अपन ने कहा किसी भी कंटेनर में आप उनको डाल दें, हमेशा जो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल है उनके बीच का जो स्पेस है वो सम और बहुत कांस्टेंट रहता है, इसलिए उनका हमेशा क्या रहता है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम. नाउ इन फर्दर सेक्शन वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. नाउ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पर अपन कैसा क्लियर कह रहे हैं कि गैसेस, तो गैसेस स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट हैव फ्लूइडिटी, जैसा कि अपन ने लिक्विड में कहा था दे कैन फ्लो, तो हियर गैसेस आल्सो कैन फ्लो. सो दे आर हैविंग पार्टिकल्स जिनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो दे कैन इजीली फ्लो. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हाई कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड में अपन ने कहा था बिल्कुल भी नहीं है, लिक्विड में अपन ने कहा था लो कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन अपन गैस में यहाँ देखें तो हाई कंप्रेसिबिलिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल है गैसेस स्टेट के वो ज़्यादा है, तो उस स्पेस को अपन कम करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैसेस हाईली कंप्रेसाइल हो जाएंगे. थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो नो डेफिनेट बाउंड्रीज. गैसेस स्टेट में जो भी मैटर होता है उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, जो पार्टिकल्स है वो फ्री होते हैं कंपैरेटिवली मूव होने के लिए. नो डेफिनेट शेप, जैसे वाटर में अपन ने कहा था कि नो डेफिनेट शेप है, तो यहाँ पर भी गैसेस में अपन कहेंगे कि नो डेफिनेट शेप. जो पार्टिकल्स होते हैं गैस स्टेट के वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो हेंस द गैस कैन फ्लो एंड गैसेस आर सब्सटेंस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम. सो नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अचीवेबल टू देम. तो पार्टिकल्स फ्री होते हैं हेयर एंड देयर मूव करने के लिए, तो वो जो भी जितना भी वॉल्यूम उनको मिलता है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो दैट्स व्हाई कह सकते हैं अपन नो डेफिनेट वॉल्यूम. तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज अपन ने देखी स्टेट ऑफ मैटर की सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, इनको आप एक कंपैरेबल टेबल के रूप में फॉर्म करके इसको स्टडी कर सकते हैं, जिसका क्वेश्चन भी बनता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन अ कंपैरेटिव टेबल. Now in further section we will discuss various interchangeable conditions, that means how can a matter changes air states like solid to liquid, liquid to gas. So interchangeable condition of the state of matter in further section will be discussed. Now continuing with the topic change of state of matter. How can one state of matter can change into the another and forward and backward direction. So यहाँ पर हमने देखा कि मेन जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है और वो इंटरचेंजेबल है. दैट मीन्स सॉलिड कैन चेंज इनटू द लिक्विड एंड लिक्विड आल्सो चेंज इनटू द सॉलिड. अगेन सॉलिड चेंज इनटू द गैस एंड गैस आल्सो कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड, एंड समटाइम लिक्विड चेंज इनटू द गैस एंड गैस आल्सो चेंज इनटू द लिक्विड. तो जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर लेते हैं जैसे कि वाटर. वाटर एक सिंपली एग्जांपल है स्टेट ऑफ मैटर का, जो कि तीनों स्टेट में आपके मौजूद हो सकता है. जैसे कि अपन बात करें सॉलिड स्टेट में अगर वाटर है तो हो जाता है जैसे कि आइस. लिक्विड स्टेट में अपन वाटर देख ही रहे हैं. और थर्ड जैसे कि गैस स्टेट में जो अपन कहेंगे तो वाटर वेपर. तो सिंपली यहाँ पर वाटर एक मैटर है, सॉलिड तीनों स्टेट में आपको देखने को मिलता है. दैट मीन्स मैटर जो है वो कैसा हो सकता है, उसकी स्टेट में इंटरचेंजेबल हो सकता है कि किसी भी स्टेट में हो सकता है, जिसके कुछ एग्जांपल अपन फर्दर सेक्शन में देखेंगे. लेकिन यहाँ पर अपन जो देख सकते हैं कि जो चेंजेस हैं, जो स्टेट है उसको अपन चेंज कर रहे हैं मैटर की, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, आप कैसे उसको चेंज परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पर अपन एक हेडिंग के थ्रू पढ़ेंगे. सबसे पहले तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर. तो पहला अपन एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में बाय चेंजिंग टेम्परेचर. तो आप कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है उसको अपन टेम्परेचर में चेंज करके उसकी अपन स्टेट को चेंज कर सकते हैं. और सेकंड अपन यहाँ पर देंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. तो बाय चेंजिंग प्रेशर. तो टू वेज यहाँ पर मौजूद है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. या तो आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या फिर बाय चेंजिंग द
प्रेशर। तो इंडिविजुअल हेडिंग में अपन देखेंगे कैसे टेम्परेचर को चेंज करके आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर पा रहे हैं, और बाय चेंजिंग प्रेशर अपन स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर पा रहे हैं। तो एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। नाउ पहला अपन देख रहे हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होते हैं जिनके बारे में अपन को एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट अपन यहाँ पर देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कि एक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसको अपन डिस्कस करें। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वाटर का। तो वाटर सॉलिड स्टेट में क्या हो जाता है, आइस, और आइस अगर कन्वर्ट हो रहा है काय में, वाटर में, यानी कि सॉलिड स्टेट से कहाँ जा रहा है, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि दैट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर अपन प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, उसको बदल नहीं रहे हैं, लेकिन बदल किसको रहे हैं, टेम्परेचर को। कैसे, एनर्जी के थ्रू। नाउ मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हो जा रहा है जहाँ पर कुछ सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अपन जैसे यहाँ पर देखें वाटर का लें, सॉलिड यानी कि आइस कन्वर्ट हो जाता है काय में, वाटर में। तो वो टेम्परेचर जिसपे कि कोई भी सॉलिड, एनी सॉलिड कन्वर्टेड और मेल्ट इनटू द लिक्विड कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर अपन बात करें जैसे कि वाटर या आइस के लिए, तो वो हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन जो अपन कहेंगे कि आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अपन मेल्टिंग पॉइंट वाटर के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अदर यूनिट में बात करें तो 273 केल्विन। तो बोथ यूनिट में आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू द लिक्विड। तो वो टेम्परेचर आपका क्या कहला जाता है, एट मेल्टिंग पॉइंट। नाउ जैसा कि अपन ने देखा है कि सॉलिड में जो है पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं पार्टिकल, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि उनके बीच का जो स्पेस है, जगह है, वो बढ़ रही है, और जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो बाहर से अपन को एनर्जी अप्लाई करनी होती है, सो दैट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल है सॉलिड स्टेट का, वो कम हो जाए, और पार्टिकल्स के बीच में जगह बने, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सकें, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकें। तो जो एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि सॉलिड को लिक्विड करने के लिए जरूरी है, उसको अपन यहाँ पर क्या कह देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये वही एनर्जी है जो कि सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में अपन को हेल्प कर रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पा रही है। तो यहाँ पर अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड एट इस मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी भी सॉलिड के 1 किलोग्राम मास को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ ना दिया जाए, कुछ ना कहा जाए, तब उसको क्या कंसीडर करते हैं कि सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो आपके आसपास के वातावरण में एयर का जो प्रेशर है उसको अपन बोल देते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी मैटर के मेल्टिंग पॉइंट पर उसके 1 किलोग्राम मास सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, वो क्या कहलाती है यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये किस मैनर में अपन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट के। नाउ इसी के अलावा अपन दूसरा एक देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। नाउ यहाँ पर अपन देखें, नाउ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म गैस और वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। सो कोई भी मैटर के लिए अपन क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दैट टेम्परेचर ऑन विच एनी लिक्विड्स
boils to convert into the gas or vapor at atmospheric pressure is called as the boiling point. For example यहाँ पर अपन देखेंगे वाटर के लिए, सो वाटर जिस टेम्परेचर पर बॉयल होकर के क्या बनाएगा, वाटर वेपर्स किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो उसका क्या कहलाएगा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर on which any liquids boil to form their vapor or gas form on atmospheric pressure is called as the boiling point. For example यहाँ पर वाटर की बात करें तो वो कितना हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन. तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 373 केल्विन है. तो इसको अपन क्या कह देंगे, उस पर्टिकुलर मैटर का क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट. तो जैसे अपन ने प्रीवियस मेल्टिंग पॉइंट में देखा था कि कैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी आपको इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए बिटवीन द पार्टिकल. तो यहाँ पर लिक्विड से गैस केस में भी वही हो रहा है. क्या हो रहा है कि लिक्विड में जो पार्टिकल है गैस के कंपेयर में थोड़े क्लोज हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको बाहर से क्या देनी पड़ती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल में ज़्यादा है कंपेयर टू गैस और गैस स्टेट. तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन बोल जाते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लिक्विड वेपोराइज होकर के गैस फॉर्म में जा रहा है, इसलिए बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसेस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एनर्जी का वो अमाउंट है जो हमें कब चाहिए, जब 1 किलोग्राम लिक्विड को उसकी वेपर में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली एज दिस हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज यूज्ड टू ओवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी क्या रहेगी, वाटर की वेपर भी रहेगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर जो एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है. तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो भी अमाउंट हमारे पास मौजूद है उस पर्टिकुलर लिक्विड का, उसमें जो पार्टिकल मौजूद हैं उनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, उसको ओवरकम करने के लिए वो कंटिन्यूसली वो एनर्जी क्या हो जाती है, यूज. तो इस कारण एनर्जी के यूज हो जाने से टेम्परेचर के बढ़ाने के लिए कोई एनर्जी मौजूद नहीं हो पाती. इस कारण इंटरचेंजिंग कंडीशन में टेम्परेचर कैसा बना रहता है, कांस्टेंट यानी कि स्थिर बना रहता है. So at 100 degree centigrade, energy of water vapors is much more than energy of water at 100 degree centigrade. So we can change one state of matter to another state by changing the temperature. हमने देखा कि आइस यानी कि सॉलिड स्टेट से हमने वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट बनाया. नाउ लिक्विड वाटर से अपन ने क्या बना दिया, वाटर की वेपर बना दिया. तो यहाँ पर अपन देख कर सकते हैं कि जो वाटर है वो तीनों स्टेट में मौजूद है और अलग अलग टेम्परेचर पे है. तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या करेगा, वाटर जो है कैसे जाएगा, सॉलिड भी है और सम अमाउंट जो उसका कैसा है, लिक्विड के फॉर्म में भी मौजूद रहेगा. 25 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा यानी कि वाटर ही रहेगा. और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो इस पर वो लिक्विड यानी कि वाटर कंडीशन में भी रहेगा और वाटर वेपर की कंडीशन में भी रहेगा. दोनों स्टेट में मौजूद रहेगा सर्टेन अमाउंट में जो एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं. ऐसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सच अमाउंट जो है कैसा, लिक्विड में भी रहेगा और सॉलिड में भी रहेगा, जो कि सॉलिड जो है लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा. तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि कैसे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर हम स्टेट ऑफ मैटर को बदल सकते हैं. आगे अपन कुछ टॉपिक और देखेंगे जिनमें कि सेम कंडीशन हो रही है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर अपन स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर पाएंगे. सो दैट विल बी डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.